Hello dear students. So till now we have discussed in the previous video about all these things. I have given you one example also, and these 5 points we have got. Based on these 5 points, I am going to derive one more definition that will be very useful to understand the subject. Okay, so let's derive that definition first. So this definition, you can see I have derived this on basis of that 5 points only. And always remember, whenever you see my video, try to make notes then and there. Okay, start writing all the things which I am writing here. That will be very helpful and very useful for you only. The above I have discussed about Adam Smith, as in the previous video after told you about something historical background of the subject. Now I have derived the definition. Let's read that. Economics is study of human behavior. See, first point I have taken one point. Based on relation between limited resource and unlimited wants, leading to problem of choice, which can easily be managed through rational use of resources which are scarce. Simply, the best definition you can use, and this will also very easy to understand. Now further, various economists has also given definitions, like Mr. Adam Smith has given one, that is Science of Wealth, and many other books you will find various different definition. So one definition is there given in your book also. We'll see that what is given in your book. I hope you can see it. It is written, economics is the science of human behavior concerned with allocation of scarce means. Scarce means यहाँ पे means का मतलब है resource only, in such a manner that consumer can maximize satisfaction, producer can maximize profit, and society can maximize social welfare. See, we have different characters through which whole of the economy is made. We have consumer, we have producer, and we have society. बगैर कंज्यूमर के, बगैर प्रोड्यूसर के या बगैर सोसाइटी के, we cannot think of an economy. These are the main actors of the economy or main actors of whole of the ड्रामा. ओके, तो अब ये बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, और हम स्केयर जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको अलोकेट करना. मोर और लेस वही बात कही गई है, कोई नई बात यहाँ पे उन्होंने नहीं कही है. ठीक, अच्छा, अब कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और सोसाइटी कौन है, इसके बारे में जानते हैं. ठीक, सी, कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, सिंपली हम लोग. ठीक, बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ. प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो आदमी है या वो पर्सन है जो इनपुट्स को कन्वर्ट कर देता है आउटपुट्स में. ठीक, जैसे ये पेन है, दिस इज अ रेडी पेन, दिस इज अ फिनिश प्रोडक्ट. तो ये जो आउटपुट निकाला है ये प्रोड्यूसर ने ही तो कन्वर्ट किया है. इसकी रिफिल, इसकी बॉडी, इसका कैप एंड एवरीथिंग, द निब, उसको कंबाइंड किया. जो प्रोसेस परफॉर्म करता है पर्सन, दैट इज कॉल्ड कंसर्न पर्सन, ही इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. ठीक, और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी मतलब इन जनरल जो लोग सारे के सारे रहते हैं. ठीक, वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म, उनके लिए सबसे मेजर थिंग जो है वो सोशल वेलफेयर होती है. तो ये बेसिक डेफिनेशन बुक में दी गई है, कोई नई बात नहीं लिखी है इन्होंने भी. ठीक है, तो यू हैव गॉट 2 definitions of economics. Now I will discuss something more about one more word that we have seen over there, that is scarcity. तो scarcity क्या होता है? scarcity का मेन मतलब है कमी. और कमी किस चीज़ की? There is scarcity of resource. अगर रिसोर्स अबंडेंस में अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनलिमिटेड है. देयर इज ऑलवेज अ लिमिट ओवर द रिसोर्स, और रिसोर्स को ही प्रॉपरली मैनेज जो कर ले जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. आप देखिए, जिस भी कंट्री ने बेस्ट पॉसिबल वे में रिसोर्सेज को मैनेज किया, चाहे वो मनी के फॉर्म में रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, जिसने भी प्रॉपर मैनेज किया और उससे ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर ली, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा मनी इनकम जनरेट कर ली, वो इकोनॉमी आज राइज पे है. जैसे अमेरिका, यूएसए की बात करें. ठीक, यूएस की इकोनॉमी राइज पे क्यों है? बिकॉज दे आर एबल टू मैनेज देयर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑन टॉप. ओके, लाइकवाइज इंडिया इज ऑल्सो हेडिंग टूवर्ड्स मैनेजिंग दैट रिसोर्सेज. और जितना अच्छा मैनेजमेंट रिसोर्सेज का होगा उतना ही ज़्यादा
इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमी डेवलप होगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। ये इकोनॉमी मतलब क्या होता है? तो सिंपली इकोनॉमी का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम through which a person earns his living। जिस भी सिस्टम से कोई आदमी अपनी लिविंग को अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। सर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एज अ टीचर मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ, एंड दैट अर्निंग आई एम डूइंग थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम, यानी मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ तो माई इकोनॉमी इज एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग ओनली। ओके, लाइकवाइज एक फार्मर की बात करें तो फार्मर किससे अर्न कर रहा है? एग्रीकल्चर से, तो उसकी इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, इसी तरीके से कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री ओनर है, वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करता है, वहाँ से अर्निंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? ही इज़ कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर उसकी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी का मतलब यही होता है एक सिस्टम जिसके थ्रू कोई भी पर्सन लिविंग अर्न करे, और हम सारे के सारे जितने भी लोग कंट्री के अंदर रहते हैं किसी ना किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उसी सिस्टम से अपनी कमाई कर रहे हैं। ठीक, जो भी अपनी अर्निंग कर रहे हैं सिंपली, तो उसी को टुगेदर हम कहते हैं इकोनॉमी। जैसे हम कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि इंडिया का पूरा वो सिस्टम जिससे इंडिया के सारे लोग जुड़े हुए हैं और सारे लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, अब वो सिस्टम रन कैसे कर रहा है? वो सिस्टम रन कर रहा है थ्रू द मैनेजिंग ऑफ रिसोर्स, और कैसे रिसोर्स? जो कि स्केयर्स हैं, जिनकी कमी है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने वो जो वर्ड कहा था मैं उसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्कैरसिटी। Previous video I have not extended because the video length is getting little long, so I am managing in this video, the second video. You will watch both the videos together. This video is the extension of the previous one only. तो स्कैर्सिटी का बेसिक मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे what you wish, that means you wish too much but what you have is less, simply दैट इज स्कैर्सिटी। ठीक है, यानी आपके पास 2000 है लेकिन आपकी जो वांट्स हैं वो 10,000 रुपये की भी हो सकती हैं, 50,000 रुपये की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप विश करते हैं ज़्यादा बट आपके रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड। ठीक है, तो स्कैर्सिटी मीन्स द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स that a person is having, simply, ठीक, in respect of his desires। ठीक, जो भी उसके डिजायर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्कैर्सिटी, कमी है उसकी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट थिंग, आपने एक वर्ड और देखा था वहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक, अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब कि जब भी आपके पास रिसोर्स होता है तो आप रिसोर्सेस, जैसे ही आपके पास रिसोर्स आया, जैसे उस केस में 2000 रुपीज़ आए, अलग अलग चॉइसेस आपके दिमाग में जनरेट होती हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव्स आपके दिमाग में जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो अल्टरनेटिव जनरेट हो जाते हैं, वो चॉइसेस आ जाती हैं दिमाग में, यू अगेन हैव अ प्रॉब्लम कि किस पे एलोकेशन करें। जो 2000 रुपये हमें मिले हैं उसको मैं इस चीज़ के लिए यूज़ करूँ या इस चॉइस के लिए यूज़ करूँ या इस चॉइस के लिए यूज़ करूँ। तो अलग अलग चॉइसेस पे आपको जो प्रॉब्लम आती है वो दो ही वजह से आती है। पहली चीज़, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है बिकॉज रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज आर स्केयर्स। और नंबर 2, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है बिकॉज रिसोर्सेज को आपको अलोकेट नहीं करना आता। प्रॉपर रेशनल मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे रिसोर्सेज का तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? इट इज द प्रॉब्लम अराइज over
अनलिमिटेड वांट्स, जो प्रॉब्लम आपको अराइज होती है बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स के ऊपर, ठीक है। एंड टू allocate the limited resource over it, ठीक। और जैसे आप allocate करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्स उसके ऊपर, ठीक है, तो इसी की वजह से यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ओके। अच्छा, इससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को आप जब एलोकेशन के थ्रू मैनेज करते हैं, टैकल करते हैं रेशनल मैनेजमेंट के थ्रू, तो आपको एक डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट भी आता है दिमाग में, ठीक, कि हाउ यू टेक द डिसीजन, किस वांट को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, यू स्टार्ट टू एलोकेट द थिंग्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे मान ली कोई नया नया बिजनेस शुरू करता है या नया नया उसकी इनकम जनरेट होना शुरू होती है या नई नई सैलरी आती है, तो इनिशियल स्टेजेस पे ही कैन नॉट मैनेज, बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही अंडरस्टैंड्स ऑल द थिंग्स एंड ही स्टार्ट्स टू मैनेज ऑल द थिंग्स एक्यूरेटली, ठीक। अब ये मिसमैनेजमेंट ही तो होता है, जब कभी भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स होता है, उसी वजह से वो इकोनॉमी का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे अब इस टाइम ही देख लीजिए, एक पैंडमिक आया हुआ है कोरोना। अब कोरोना की वजह से इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसी की वजह से इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक। ये जो इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डाउनफॉल आ रहा है, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, आपको पता नहीं है कि कैसे आ गई या क्यों आ गई ये बीमारी, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब ये तो बिना बताए चीज़ हुई है, ठीक। लेकिन कभी कभी जो नॉर्मल केस में आप देखते हैं कि इकोनॉमी में जीडीपी गिर गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, डिस्ट्रेस आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी लॉस में जा रही है, रिसेशन में जा रही है, इसका सिंपल रीज़न होता है दैट मीन्स दैट इकोनॉमी इज नॉट एबल टू डू द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ limited resources over unlimited wants, okay। So this two videos I hope will help you to understand the concept of what economics subject is all about, okay। So thank you class, we'll discuss more of the things in upcoming videos. Any problem you can comment down or you can ask on the created group. Thank you class.